एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा, व्हाट सोशल मैसेज डज दिस ड्रामा कॉन्वे? व्हाट सोशल मैसेज डज दिस ड्रामा कॉन्वे? क्वेश्चन मार्क. Can you give some examples or problems or problems from current times? Question mark. बेटा रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन देखो. What social message does this drama convey? Question mark. Can you give some example or problems? Can you give some example or problem from current times? From current times. बेटा वही हमारी जो वर्ड लिमिट होती है 40 to 50 वर्ड्स, और हमारा ये 2 मार्क्स का है. क्वेश्चन को समझ लेते हैं. हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो आजकल का जमाना है, क्या आप उसमें से कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं मदर्स डे से रिलेटेड? क्या आप करंट टाइम्स में से कोई ऐसा बेटा प्रॉब्लम बता सकते हैं जो रेलिवेंट है? और वैसे ये ड्रामा क्या सोशल मैसेज हमें दे रहा है? ये बेटा ये क्वेश्चन. तो क्या सोशल मैसेज ये ड्रामा दे रहा है? और आपको करंट टाइम में से कोई ना कोई एग्जाम्पल देना है. ज्यादा लंबा आंसर है नहीं हमारा, 40 to 50 वर्ड्स का है. तो सोशल मैसेज क्या दे रहा है वो तो हम आराम से 3-4 लाइन का लिखते. Mothers should not be considered as beasts of burden. They should also be given some time to relax. And उनको जो डिग्निटी है, जो रेस्पेक्ट है, वो उस फैमिली में मिलना चाहिए. और बेटा ये सारी बातें लिख करके हम इसमें एक और चीज जो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, जेबी प्रिस्टली ने बहुत रेलिवेंट टॉपिक उठाया है. हालांकि ये 1950s में ड्रामा लिखा गया था, पर आज भी कुछ लेवल तक रेलिवेंट है. आज के जमाने का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हम बोलेंगे कि women are taking dual responsibility now. Women are, not all the women are working, but those who are working, they have to take dual responsibility. They have to earn also, और हमारा mindset है that they have to take care of the family also. So we look up to female members, mothers, to be responsible for the care of the house or care of the children. इसलिए बहुत सारी मदर्स आज भी बर्डन में जीती हैं, गिल्ट में जीती हैं. तो बेटा ये जो आज का एग्जाम्पल है वो भी हम देंगे. We don't have to write a long answer for this. लंबा आंसर नहीं लिखना है हमें इसके लिए. शॉर्ट है, पर शॉर्ट में सारी चीजें आ जाएंगी. तो फर्स्ट पार्ट जो आपसे बोला है मैसेज क्या दे रहा है, तो 4 लाइन में मैसेज लिख देंगे और 2 लाइन में हम करंट जो है वो एग्जाम्पल दे देंगे. ठीक है, राइट डाउन द आंसर, फिर चैप्टर बेटा कंप्लीट करके लॉन्ग आंसर करें. जेबी प्रिस्टली
Priestley. J.B. Priestley wrote this drama, wrote this drama in 1950s, 1950 small s. J.B. Priestley wrote this drama in 1950s. But the issues that he raises, but the issues that he raises are applicable to a number of houses, to a number of homes, to a number of homes even today. Are applicable to a number of homes even today. Full stop. Mothers should not be considered as beasts of burden. Beasts of burden. Stop. They should also have the freedom. They should also have the freedom to relax and enjoy. To relax and enjoy. Stop. The play also gives the message. The play also gives the message that mothers themselves can change the dominating behavior, can change the dominating behavior of their family members, of their THEIR, of their family members by refusing to work, more than they can do. By refusing to work more than they can do. बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखो. नेक्स्ट लाइन में जहां ये खत्म हो गया वो सोशल मैसेज क्या दिया है ड्रामा ने वो हमने लिख दिया. अब नेक्स्ट लाइन में लिखो जो कि दूसरा क्वेश्चन है बेटा और वो आज के जमाने का एग्जाम्पल. इन करंट टाइम्स we see that women are working and taking dual responsibility, DUAL, dual responsibility. Full stop. They are held responsible. They are held responsible to earn. नहीं बेटा earn. They are held responsible to take care of the children as well as of
home as well as of home. Full stop. Hence, they are burdened. Hence, they are burdened with earning with earning money and becoming home home caretakers and becoming home caretakers. थोड़ा लंबाई हुआ है, एक दो लाइंस इसकी कम कर लेना, वो तो मैं वैसे भी ज्यादा लिखवाती हूँ, तो भी बहुत कम करने को। बेटा एक तो नोट्स में पीडीएफ भी मैंने शायद पूरा ही भेज दिया है, और जिन बच्चों के पास नोट्स हैं तो उनके पास तो है ही बेटा। नोट्स में निकालो आप लोग बेटा सिक्स्थ पेज, और मैंने भी निकाल के साइड में रख दिया है। और फिर निकालो पेज नंबर 5050, पेज नंबर 5050। Beta, although we have read page number 5050, yet we are reading it again, और थोड़ा सा फिर बाद का समझते हुए फिर 51, 52 पे तो खत्म ही करना, ठीक है। तो पेज नंबर 5050 पहले बुक में, और बेटा उसके बाद फिर पेज नंबर हमारा 5 जो है वो नोट्स का हम पढ़ें। Now listen you two. बेटा मिसेस फिजाल्ड बोल रही है, मिसेस फिजाल्ड, जो कि अंदर से तो बेटा मिसेस फिजाल्ड है, बाहर से मिसेस पियर्सन है। तो आंसर में हम कैसे लिखते हैं, जो बाहर से बंदा दिख रहा है उसका नाम लिखते हैं, अंदर से वो जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। Now listen you two. I want to have a private little talk with Mrs. Fitz. She corrects herself hastily with Mrs. Pearson. So I will be obliged if you will leave us alone for a few minutes. अब बेटा पेज नंबर 50 फर्स्ट लाइन से पढ़ रही। मिसेस पियर्सन जब अपने ही घर आती है, अपने हस्बैंड को इस कंडीशन में देखती है, अपने बच्चों को सफर होते देखती है, तो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे 2 मिनट के लिए अकेले रहने दीजिए। और बेटा ऐसा कह के वो जो मिसेस रियल वाली बेटा जो मिसेस प्रिजाल्ड है, उससे मिसेस पियर्सन कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो बेटा ये वाली जो लाइन हम पढ़ रहे हैं ये देख लीजिएगा। मिसेस फिर वो कहती है बेटा फिजाल्ड, नाउ लिसन यू टू, आई वांट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्स, क्योंकि मिसेस फिट्स तो वो खुद ही है। तो बेटा करेक्ट्स हरसेल्फ हेस्टिली, हेस्टिली मतलब क्विकली, फिर से अपने आप को करेक्ट करती है और बोलती है विद मिसेस पियर्सन। So I will be obliged, I will be thankful if you will leave us alone for a few minutes. कुछ मिनट्स के लिए हमें अकेला छोड़ दो, हमें बात करनी है, और तुम दोनों यहाँ से जाओ। I will let you know when we have finished. जब हम लोग बात पूरी कर देंगे तब फिर तुम आ जाना, मैं तुम्हें बता दूँ। Go on please. I promise you that you won't regret it. बेटा regret का मतलब feel sorry. और हमें अकेला छोड़ने के बाद तुम्हें कोई खास दुख नहीं होगा। There is something here that only I can deal with. कुछ ऐसा हो रहा है जो सिर्फ मैं ही डील कर सकती हूँ। जॉर्ज जो है बेटा राइजिंग, हस्बैंड भी खड़ा हो जाता है। I am glad somebody can because I can't. Come on डोरिस। बेटा उसने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर कोई इस चीज को ठीक कर सकता है तो अच्छा चलो नाउ गो, और आप ही ठीक करिए मैडम, आप ही जरा इन लोगों से बात करिए, आप मेरी वाइफ से बात करिए, क्या हो गया है मालूम नहीं।
जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट, बेटा बच्चे बाहर चले गए, एंड दे गो, as they go, Mrs. Frizzard moves to left of the small table and sits. और बेटा जैसे ही सारे कमरे में से गए, तो जो मिसेस फ्रिजार्ड है वो जल्दी से घूम के आके मिसेस पियर्सन के पास बैठ गई। और आप समझ गए, मिसेस पियर्सन के पास बैठ गई मतलब जो अंदर से मिसेस फ्रिजार्ड है उसके पास बैठ गई। She eagerly beckons Mrs. Pearson to do the same thing. बेटा beckons का मतलब to give signal, और जल्दी से उसको कहती है चेंज करो, पर्सनालिटी चेंज करो। Mrs. Frizzard, we must change back now, we really must. और हम लोगों को अब बस पर्सनालिटी चेंज करने का टाइम आ गया है। Why? और बेटा वो तो तैयार ही नहीं है दोबारा से अपने बॉडी के अंदर जाने के लिए। क्यों? Because this has gone far enough. बहुत आगे बात बढ़ चुकी है। I can see they are all miserable. बहुत प्यार करती है बेटा मिसेस पियर्सन अपनी फैमिली से। कह रही है देखो मेरे बच्चे कितने मिजरेबल पुअर कंडीशन में है, मेरा हस्बैंड कितनी पुअर कंडीशन में है, एंड आई कांट बियर इट, मैं ये टॉलरेट नहीं कर सकती। और बेटा वो कहती है अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड। नहीं, मुझे थोड़ा सा और इनको सुधारने दो, सही हो जाएंगे ये लोग। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, और वैसे इन लोगों के अंदर बहुत चेंज आ गया इनके बिहेवियर में। She moves to the right of the table and sits. खड़ी होती है और टेबल पे दूसरी तरफ जाके बैठ गई बेटा। रियल मिसेस फिट्जार्ड, नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट। नहीं, मैं और नहीं देख सकती हूँ। I really can't. We must change back. Hurry up, please, Mrs. Frizzard. जल्दी से अपनी बॉडी एक्सचेंज करो। Well, if you insist. ठीक है, अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मैं कर लूंगी। Yes, I do. Please. Yes, I am insisting you. जल्दी करो। She stretches her hand across the table eagerly. Mrs. Pearson takes them. हाथ आगे कर दिए बेटा रियल मिसेस पियर्सन ने कि जल्दी से हाथ पकड़ो, मंत्र बोलो ताकि हमारी पर्सनालिटी एक्सचेंज हो जाए। क्वाइट नाउ, चुप हो जाओ, रिलैक्स। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फ्रिजार्ड स्टेयर एट ईच अदर। स्टेयर मतलब लुक, एक दूसरे की आंखों में देखती हैं। मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर, जैसे पहले किया था वैसे ही करती हैं। अरिस्टा लंबा बम्बा पता नहीं क्या क्या मंत्र बोला। They carry out the same action as before. दोनों बेहोश हो गई। Going legs and then coming to life. और legs का मतलब बेटा बिल्कुल पूरी तरीके से अनकॉन्शियस सी, और धीरे धीरे दोनों में फिर से जान आती है, मतलब दोनों अपनी अपनी बॉडीज में पहुंच गई। But this time of course they become their proper personality. Mrs. Frizzard, well, I enjoyed that. तुम्हारे घर में हुक्म चला के मुझे बहुत मजा आया। I didn't. Mrs. Pearson कहती है मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। Well, you ought to have done. तुम्हें मजा करना चाहिए था मेरे घर जाकर के। Now listen, Mrs. Pearson. Don't go soft on them again. अब उनके साथ प्यार मोहब्बत से बात मत करना। Else it will all have been wasted. नहीं तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। I will try not to, Mrs. Frizzard. अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनसे प्यार से बात ना करूं, क्योंकि मिसेस पियर्सन बहुत माइल्ड है, बहुत जेंटल है, वो तेज बोल ही नहीं सकती बच्चों से। They have not had as long as I would like to have given them. अभी उन्हें वो पूरा टाइम मिला नहीं जो मैं उन लोगों को देना चाहती थी सुधारने के लिए। Another hour or two. अगर मुझे 1-2 घंटे और मिलते ना, मैं इनको सबको लाइन पे ले आती। Rough treatment might have made it certain. I am sure they will do better now. नहीं, इतना जो तुमने किया, अब मुझे लगता है कि ये लोग सुधर जाएंगे। कोई बात नहीं। Though I don't know how I am going to explain. मुझे नहीं पता मैं उनको कैसे समझाऊंगी कि मुझे क्या हो गया था, मैं क्यों इतना तेज बोल रही थी। बेटा मिसेस फ्रिजार्ड सीवियरली मतलब एंग्रीली, गुस्से में बोलती है, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनेशन। शुरू मत हो जाना तुम ये बोलने के लिए कि सॉरी मेरे से गलती हो गई और मैंने तुम्हें जो है वो ऐसे बोला एंड ऑल दैट, और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर। अगर तुमने उनके सामने सॉरी मांगी
अगर तुमने उन्हें ये बताने की कोशिश करी कि तुम यहाँ नहीं थी, मिसेस फ्रिजार्ड उनकी बेटा उनके साथ ऐसा बिहेव कर रही थी, तो यू आर डन फॉर का मतलब फिनिश्ड, तुम खत्म हो गई हो, फिर तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। बेटा मिसेस पियर्सन विद स्पिरिट, स्पिरिट मतलब विद एनर्जी, It is all right for you, Mrs. Brizard. After all, they aren't your husband and children. आप ऐसा बोल सकती हैं, मैं नहीं बोल सकती, वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे ऐसे कैसे बदतमीजी से बात करूं? Now you listen to me. Now you admit yourself were spoiling them. अब तुमने माना कि तुमने ही उन्हें बिगाड़ा था। बेटा ये पूरी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रामा का सॉल्यूशन इसी स्पीच में है। अगर कोई मदर्स की कंडीशन को सुधार सकता है तो वो खुद मदर ही है, कोई और मदर की कंडीशन नहीं सुधार सकता। बिगाड़ती भी मदर ही है और सुधारती भी मदर ही है अपनी कंडीशन। एंड दे डिडंट अप्रिशिएट यू, और वो तुम्हारी तारीफ नहीं करते हैं। एनी अपोलोजाइजेस, एनी एक्सप्लेनेशंस एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर। फिर अगर तुम सॉरी मांगोगी, फिर अगर तुम उन्हें समझाओगी कि तुमने उनसे ऐसे रूडली बात क्यों करी, वो फिर वही काम करेंगे जो आज तक करते रहे हैं। आई एम वार्निंग यू डियर, जस्ट गिव देम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस, थोड़ा तेज बोलो, उन्हें सीवियरली देखो, नाउ एंड अगेन टू सजेस्ट यू माइट बी टफ विद देम इफ यू वांटेड टू बी, एंड इट ऑट टू वर्क, एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट। और अभी टेस्ट कर लो इस बात को, थोड़ा सा गुस्से में देखो, थोड़ा सा 2 लाइन बोलो, अपने आप सारे लाइन पे आ जाए। हाउ? वेल, व्हाट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू? मैं कैसे करूं? तो बोलती है ठीक है, मुझे बताओ आज तुम क्या करना चाहती हो? स्टॉप एट होम फॉर वंस, आज तुम चाहती हो तुम्हारी फैमिली सारी घर पे रहे, कोई भी क्लब में ना जाए। यस, एंड गिव मी अ हैंड विथ सपर। बेटा सपर मतलब इवनिंग मील, शाम का खाना, और बेटा हैंड का मतलब हेल्प। हाँ, मैं चाहती हूँ आज सारे लोग घर पे रुके, मेरे बच्चे और मेरा हस्बैंड ना जाए क्लब में, और मेरे साथ डिनर में हेल्प। एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू एंजॉय वेदर दे डू और नॉट। और अगर तुम कहोगी तो वो ये करेंगे चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। बेटा मिसेस पियर्सन हेजिटेटिंग, वो नर्वस हो जाती है, ऐसा हो सकता है? वेल यस, आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी, और मैं चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ में ताश खेलूं, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस। बस क्रिसमस पे खेल पाती हूँ, नहीं तो खेल ही नहीं पाती हूँ। मिसेस रिजल्ट गेटिंग अप, दैट इज ऑल टू डू देम, तो फिर वो लोग यही करेंगे, तुम उनसे बोलो। She moves towards the door, left then turns. बेटा मिसेस ब्रिजाल्ड अपने घर जाने लगती है, लौट के फिर आती है, बट रिमेम्बर कीप फर्म। फर्म का मतलब होता है बेटा फिक्स्ड, डिटरमिन्ड, और यू हैव हैड इट। और अगर आज तुम बिल्कुल उनसे स्ट्रिक्टली नहीं बोली, गॉन केस। She opens the door calling, hi, you can come in now. आ जाओ अंदर आ जाओ। Coming away from the door and moving right slightly, quietly. और बेटा मिसेस रिजल्ट चली गई, बट रिमेम्बर अ फर्म हैंड। जाते जाते भी बोल के जा रही है मिसेस पियर्सन को, बहुत बेटा स्ट्रिक्टली हैंडल करना अपने फैमिली। जॉर्ज, डोरिस एंड साइरल फाइल इन थ्रू द डोरवे। बेटा फाइल का मतलब लाइन, लाइन में तीनों अंदर आते हैं। लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन। बेटा एप्रीहेंसिव मतलब फियरफुली, थोड़ा डरे डरे से आए हैं अपनी मम्मा को देखते हुए, पता नहीं अब मूड कैसा है। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एंजॉय योरसेल्फ, आप लोग एंजॉय करो, मैं चाहती हूँ। पेज 52 पे आ गए बेटा, लास्ट पेज। द फैमिली लुक्स anxiously at Mrs. Pearson, who smiles. Much relieved, they smile back at her. बेटा अपनी मम्मी को देखते हैं, मम्मी मुस्कुराई, सारों की जान में जान आई, चलो मम्मा मुस्कुरा रही है, नहीं तो अभी तक तो ऐसा गुस्से में थी। यस मदर, हाँ जी मदर, क्या करूं मदर? Seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought we would do. अच्छा तुम लोग घर नहीं जा रहे हो क्लब आज,
अब मैं बताऊं तुम लोग क्या काम करो. मिसेस फ्रिजाल्ट गिविंग अ फाइनल वार्निंग. रिमेम्बर बेटा मिसेस फ्रिजाल्ट अपने घर नहीं जा रही, फिर लौट आई, याद रखना याद रखना. मिसेस पियर्सन नॉडिंग देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली. और बेटा मिसेस पियर्सन को याद आया, वो कहती है, और फिर बेटा गुस्से में देख के बोलती है, नो ऑब्जेक्शंस आई होप. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्लब नहीं जाना, आज घर पे ही रुकना है. जॉर्ज नो मदर वॉट एवर यू से. हस्बैंड कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं जाएंगे मम्मी, आप बताइए हमें क्या करना है, जो आप बोलेंगे हम वही करेंगे. मिसेस पियर्सन स्माइलिंग. आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रमी. हम चारों मिलके आज रमी खेलेंगे. एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी. और बच्चे आज खाना बनाएंगे. while I have a talk with your father. और मैं बैठ के पापा से बात करूंगी. जॉर्ज हाँ suits me. He looks challengingly at the children. और बेटा पापा देखते हैं बच्चों को, बच्चे क्या कहेंगे. What about you two? Cyril hastily, yes that is all right. बेटा कहता है हाँ ठीक है. और बेटा डोरिस बेटी को पसंद नहीं आता, कहती है well I say what, speak up. मम्मा गुस्से में बोलती है हाँ बोलो बोलो क्या क्या क्या. बेटा डर गई बेचारी बेटी, कहती है ओ आई थिंक इट वुड बी लवली. नहीं नहीं बहुत अच्छा है, ठीक है ऐसा ही करते हैं. गुड बाय मिसेस फ्रिजाल्ट, कम अगेन सून. मिसेस फिल्डार, yes dear, night all, have a nice time. Mrs. Frizzalt exits and the family cluster round mother as the curtain falls. और सारे बेटा एक साथ आ गए, मदर्स डे हो गया. पर इसे और अच्छी तरह आप नोट्स में पढ़ोगे तो जल्दी से नोट्स निकालो. पेज बेटा उसका, तो नोट्स में इजी के साथ साथ पूरा समराइज करके और एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है. जल्दी से देखो बेटा पेज नंबर 5. जॉर्ज is the husband of Mrs. Pearson. He is about 50. He is heavy and slow moving. He is solemn, smug, self-centered and self-important person. Notes अच्छे से पढ़ के जाना. सबका कंपेयर आता है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है. मिसेस फ्रिजराल्ड और मिसेस पियर्सन की आती है बेटा, और मिस्टर जॉर्ज की आती है, और बेटा डोरिस और साइरिल की. तो सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स नोट्स में हमने लिखी. He is fundamentally decent but pompous. He hardly spares. We have already read it. मैं reread कर रही हूँ. Spares का मतलब gives a thought for his wife. He takes her for granted. He is always at the club and spends little time with his wife. He is shocked to see her drinking stout on his arrival at home. His male ego suffers a jolt when he comes to know that his wife hasn't kept tea ready for him. If he needs it or not, she must have kept tea ready like an obedient wife. Now Mrs. Pearson ridicules him, गुस्सा करती है. He has become a standing joke for the people at the club. Club जाते हो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं. They call him Pompey Pearson because he is slow and pompous. Pompous मतलब show off. He loses his temper and glares at her. This बेटा glares मतलब angry look देता है. Mrs. Pearson threatens to slap his big fat silly face. अभी थप्पड़ मारूंगी खींच के. Husband की तो हालत खराब. Cyril knows that his father is called Pompey by his club mates, but he protested. He believes that she should not have told her father what others really thought of him. She had hurt his father's feeling. आपने पापा को क्यों बताया? उनको कितना बुरा लगा. And those of his own too. और मुझे भी बहुत बुरा लगा, पापा को आपने दुख पहुंचाया है. George reconciles in the end. बेटा reconcile का मतलब दोस्ती कर लेते हैं. Mrs. Frizzard arrives. George complains about it. She looks at miserable state of Doris. Mrs. Pearson asks George not to forget his etiquettes when some friend or visitor of hers come to see her. The real Mrs. Pearson can't bear the drama anymore. वो बेटा और tolerate नहीं कर पाती है drama. She feels that her husband and children are really miserable. बहुत poor condition में है, वो समझ जाती है. She can't stand it anymore, and she presses बेटा Mrs. Frizzle to change back their personalities. Again they hold hands.
mutters magical words and they come back to their original personalities. Before leaving, Mrs. Grizzard gives her the final advice to retain her dominating behavior and not to apologize or give explanations for any act, otherwise all their efforts would be wasted. Now the time is correct for reconciliation. पूरी family reconcile हो जाएगी, दोस्त हो जाएगी. Doris, Cyril and George have received enough for their mistakes. उनको अपनी गलती का बेटा सजा मिल गया है. Mrs. Pearson decides to have a nice family game of rummy. She asks the children to get the supper ready. Doris hesitates, but Mrs. Pearson reacts sharply. Ultimately, everyone willingly, matlab readily, happily supports Mrs. Pearson's suggestion. In the end, it is the Mother's Day. There is a drastic change in the attitude of Mrs. Pearson's family. They are no more haughty and overbearing. Beta, overbearing matlab dominating. Haughty का मतलब proud नहीं है कि हम बाहर से काम करके आए हैं. वे माँ भी तो घर में काम कर रही है. They are now ready to share the household work with her. The children speak politely, meekly, but gently. They agree to get supper ready while she enjoys conversing with their dad. This is the real Mother's Day, when the mother got her position in the family. So, beta, when the mother is heard, when the mother is cared, when mother is thanked for her work, that is really Mother's Day. ठीक है, तो ये था बेटा हमारा चैप्टर मदर्स डे जो कि खत्म हुआ. अभी इसका लॉन्ग आंसर हम लोग अपनी अलग अलग क्लासेस में लिखेंगे.